field line must be perpendicular. That is fulfilled. So this is some more properties of equipotential surfaces. Few we did last class. The work done in moving the charge on equipotential surfaces is always zero. Electric field is always perpendicular to the equipotential surfaces. Two equipotential surfaces can never intersect because if they intersect, there will be two directions, right? Similarly, all conductor surfaces, that means for one conductor surface, all conductor surface is at same potential. All conductor surface is equipotential surface. Yes, I asked the logic, I mean reason behind it. How can we explain with it? What is the reason behind equipotential? Like this is a conductor surface. Whatever be the charge distribution, somewhere uniform, non-uniform, why there is potential constant? Anyone? Aman? So because we know that the direction of electric field is always perpendicular to equipotential surface, then we can see that dv equals to minus e dot dr. Then here theta is 90 degree and dv will be zero. Mm-hmm. Okay. So Fine. Electric field is perpendicular, and if we go along the surface, electric field is perpendicular to that dr. So E and dr are perpendicular. dV will always be zero. Correct. Right? So there will not be any change in potential, and the potential on any point inside will also be same as potential on the surface. जितना surface पे potential है उतना अंदर potential होगा और इसका reason है because inside electric field is zero. So potential at every point inside is also equal to same as potential on the surface. And that reason is because electric field is zero. Potential at every point inside the conductor with it Yes, sir. होना मैदान में तुमने आंसर नहीं किया अभी potential at every point inside the conductor is same as potential on its surface. All conductor surfaces में फर्क नहीं पड़ता कि उस कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा. Whatever be the charge distribution, it is towards left positive, right negative, as happens in the case of induction. Induced charges, the electric potential on the whole surface will be same. So हम इसको use करेंगे. We will see some special cases in which we can find the potential by using the induction also. Okay. So with the help of equipotential surfaces property, we have to now find out, draw the equipotential surfaces of few specific geometries. Like first is draw the equipotential surface of an electric dipole. Draw equipotential surface of a dipole, of an electric dipole. And we have these many properties. With the help of these properties, we need to check. बट आप में से किसी ने अभी मुझे लग रहा है वो एक्सरसाइज नहीं की है जो मैंने भेजी थी ऑब्जेक्टिव वाली वर्कशीट, मतलब आई मीन दी एक्सरसाइज. किसी ने मुझसे आंसर नहीं मांगे अभी तक. दैट 180 क्वेश्चन वन. आर्यन, आर्यन, यस सर. बेटा वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं किया अभी? नहीं सर, वो करने शुरू कर दिए सर. वो कल आपसे मैसेज करा था सर, उसके बाद फिर कर लिया. नहीं तो तुमने तो नोट्स मांगे थे, आंसर शीट तो किसी ने मांगी हाँ थी. सर, फिर उसके बाद समझ के फिर करना शुरू कर दिए थे सर एक्सरसाइज धीरे धीरे. अच्छा. Okay, I have extended the validity of test on the Prepdoor app. Prepdoor पे objective test upload हो गया. जिन्होंने last time नहीं दिया था, I think they can give it. Only Krish attempted. There are two tests. पहला test तो कुछ लोगों ने दिया था. Second test was on Prepdoor. Only Krish attempted till yesterday.
बाकी लोगों को प्रेप डोर पे वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है which was supposed to be attempted on this weekend. And I hope everyone has prep door login ID. अगर नहीं है तो मुझे बता देना. I will check and I will message your user ID password. Another speed labs, उस पे भी मैंने 2 टेस्ट अपलोड किए थे. But शायद उसमें ग्रुप थोड़ा गलत फॉर्म हो गया था. I am reforming the group. But paper will be there in the speed तो labs. आप टेस्ट जो है आप प्रेपडोर पे डालोगे ना, ऐप पे नहीं डालोगे. बेटा ऐप पे भी आ जाएगा, प्रेप डोर पे, और वेब ब्राउजर पे भी आ जाएगा इन द मॉक टेस्ट सेक्शन जैसे 11th में होता था. ओके सर. इसकी टेस्ट एक्सपायर कब हो रहा है? हाँ बेटा, तो टेस्ट एक्सपायर कब हो रहा है? टेस्ट एक्सपायर कब हो रहा है? आई थिंक मंडे ट्यूसडे, टुमारो ट्यूसडे मिडनाइट 5 PM. तो कल दे सकते हैं सर? कल दे सकते. ओके. इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना हुआ मैं डाइपोल का, सो पहले तो हम उसकी रफली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे. एंड व्हेन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय यूजिंग दिस फैक्ट. एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलरली कट करना चाहिए, और दूसरा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मस्ट बी क्लोजर, राइट. ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे और इधर पॉजिटिव से अवे. नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ, टुवर्ड्स and towards. Now you can see that the electric field in between the charges is more. Electric field in between the charges is more. Why? Because both are in the same direction. The electric field is both in the same direction in between the charges, and therefore it is more in between the charges. Where electric field is more, if electric field is more, then the equipotential surfaces will be closer. So वैसे ये point charge है, point charge के लिए equipotential surfaces were concentric spheres. But ये जो second sphere बनेगा ये अंदर की तरफ ज्यादा पास होगा और बाहर की तरफ इसके बीच की distance ज्यादा होगी, density will be less. If you remember, this was one of the property of equipotential surfaces, right? Yes, sir. Equipotential surfaces, E is delta V by delta R. So जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे डेल्टा आर कम होगा, मींस द पोटेंशियल सरफेसेस विल बी क्लोजर. ऐसे लेफ्ट साइड में भी सेम लॉजिक, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, सो इनसाइड द सरफेसेस विल बी क्लोजर, और बाहर की तरफ इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी. दिस डिस्टेंस विल बी मोर on the outward side. Sir? Correct? Yes, any doubt? Yes, sir. Sir, यहाँ पे आपने लिखा है E equals to delta V by delta R. Sir, लेकिन ये तो E equals to partial differentiation of V upon partial differentiation of R होता है ना, correct? नहीं बेटा, वो तो तब होता है जब हमारे पास 3D में पोटेंशियल का फंक्शन. अगर पोटेंशियल का फंक्शन जैसे KQ by R है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो सीधे dV by dr करो. डेल्टा V तो dV बन जाता है ना. वो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो तो हम तब यूज करते हैं when potential is 3-dimensional function, x, y, z, all 3 functions are there. Okay. समझ गए? Yes, sir. This becomes dV by dr when electric field is given in terms of r only. Actually इसमें डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो हम यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x, y, z. There's another coordinate system called as spherical coordinate system, जिसमें हम सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं, r, थीटा और फाई. इसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा और इसका z एक्सिस के साथ एंगल फाई, ऐसा कुछ मेजर करते हैं. दिस इज x, y एंड z. सो इसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. जैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है व्हिच इज x, y and z. This is one coordinate system in which we generally have been using the calculation since now till now. The second one is called spherical coordinate system. तो ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ by R square,
दिस इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. E is minus dv by dr, you will get the same result kq by r square. अब ये dv by dr को हम किसी स्मॉल रीजन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, dv is actually delta v, so ये मैग्नीट्यूड है इसलिए माइनस साइन नहीं लगाया मैंने. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा r, राइट. Yes, sir. जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो भी हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा r रख लेते हैं. इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का गैप कम होगा. Equipotential surfaces will be closer in between the charges, right? Yes, sir. Equipotential surfaces will be closer in between the charges, और बाहर की तरफ उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी. और इसका रीजन है because the electric field in between is more. अब इन दोनों के ठीक बीच में भी एक ऐसा पॉइंट है, there is one more surface which is passing exactly through the midpoint. ये जो लेफ्ट साइड के डॉट डॉट स्फीयर्स हैं इन पे पोटेंशियल होगा पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. राइट साइड में जो नेगेटिव चार्ज के रेड स्फीयर्स हैं पे पोटेंशियल होगा नेगेटिव, राइट. एग्जैक्टली मिड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल एग्जैक्टली मिड Zero. पॉइंट ऑफ द डाइपोल? जीरो. Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन का कोई भी पॉइंट लोगे उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो. इनफैक्ट इससे पास होने वाला कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन, a perpendicular plane passing perpendicularly through the midpoint will also be a equipotential surface, and the potential at every point on it will be zero. It is constant. बेटा समझ आ गया नहीं? This is also equipotential surface क्योंकि potential हर जगह पे constant है, though it is zero. So जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ये परपेंडिकुलर कट करना चाहिए. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट. कहीं पर भी देख लो. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पे पास पास होनी चाहिए. इससे अंदर के साइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, E1 प्लस E2. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन बिटवीन. बाहर की तरफ अपोजिट है, सो इट विल बी E1 माइनस E2, राइट. समझ आ गया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया? दिस इज नॉट कंसेंट्रिक स्फीयर, थोड़े डिस्टॉर्टेड स्फीयर है. अंदर की तरफ पास पास है, बाहर की तरफ डिस्टेंस ज्यादा है. Now we will use this similar logic to draw the equipotential surface of two positive charges. Equipotential surface. Next question. ये सब बोर्ड में भी आ चुके हैं question. These are important for the CBSE board. Draw the equipotential surfaces of two positive point charges. Placed close to each other. और अब जितने भी डीपीपीस मैं आपको दूंगा, अब डीपीपी के केवल डाउट डिस्कस होंगे. Not all of them will be done in the Friday class like we used to do initially. कुछ हम क्लास में कर सकते हैं और ना because concept बहुत सारे हैं and we cannot afford to be so slow कि हमें 11th भी revise करना है. ये एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. डिफरेंट चार्जेस ले लो. डाइपोल में तो मैंडेटरी था कि सेम ही होंगे. नाउ इट इज डिफरेंट, मे बी प्लस Q1 एंड प्लस Q2. इनकी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप बनाना है बाय यूजिंग द सेम लॉजिक. सो these are the positive charges, they repel each other. The electric field lines will also repel each other. This is also positive charge, not negative. Plus Q1 and plus Q2. Positive charges are repelling each other. The electric field lines are also kind of repelling each other. And for this electric field,
we have to now draw its equipotential surface. Right? ऐसे कुछ होती है field lines. This is the field line of two positive charges placed close to each other. Now, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम प्लॉट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं. पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, सो Q1 की अवे फ्रॉम इट एंड अवे फ्रॉम इट. Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव की अवे फ्रॉम इट एंड अवे फ्रॉम इट. Now in this case, electric field line field अंदर opposite है. Inside, in between the two charges, the electric field will be less. Outside the charges, electric field will be more. So जब हम इसकी equipotential surfaces बनाएंगे अंदर के increasing concentric circle, बेटा increasing concentric circles बनेंगे. नहीं, इसमें अंदर के साइड गैप ज्यादा होगा, बाहर की साइड गैप होगा, क्योंकि फिर इसमें वही बाहर की साइड फिर वही बोल रहा था, increasing concentric circle नहीं concentric. ना, ये distorted हो जाती है. You cannot अच्छा, call okay. them as concentric in the center. Same नहीं है. Okay, sir. Same happens on the right side also. बाहर की side, these surfaces will be closer because the electric field outside is more. In between, electric fields are opposite, so it become. अब इसमें जो अंदर की तरफ जो right side और left side के spheres हैं, both will have positive value of potential. Why positive? Because they both are positive charge. जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का किसी एक स्फीयर पे, किसी एक वैल्यू पे जिसके लिए पोटेंशियल दोनों का सेम हो, दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसे ये दोनों के रेडियस बड़े होते जा रहे हैं तो जिन दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दोस टू स्फीयर्स विल ज्वाइन. क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो फर्क नहीं पड़ता है कौन से चार्ज का है, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. जो भी फाइनल वैल्यू आ गई, सपोज लेफ्ट साइड में इसका 50 वोल्ट है और राइट साइड वाले स्फीयर का भी 50 वोल्ट है. So these two surfaces will join each other, and that become the shape of equipotential surface of this combination. ये पिछले वाले में क्यों नहीं हुआ था? ये डम्बल टाइप शेप पिछले वाले में क्यों नहीं बना? Why it was not there in electric dipole? Why this dumbbell was not formed here? Why there two cannot join? Because Positive negative charges. हाँ, इसमें जो लेफ्ट साइड वाले स्फीयर है, इसमें +100 +80, राइट साइड वाले पे -100 and -80. So the potentials are positive on the left sphere, negative on the right sphere. So their potential can never be equal. They cannot join each other. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायपोल बनाओ और दो पॉजिटिव चार्जेस साथ में रखे हो तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ. Working, I mean, is not required. I'm not writing that. If you want to, नीचे से clear है E1 E2 से, because बाहर की side E1 E2 same direction में है on both the side of charges. Electric field ज़्यादा है इसलिए density कम. Density कम means charges are closer to each other. Right? Right? Yes, sir. Okay, wonderful. Next is did we do the questions where finding the position of zero potential and draw the graph? करके देख लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है. Let's do these questions. Find the position where electric potential will be zero and then draw the V versus X graph. जैसे हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ किए थे in the null point case. Potential V versus X graph for a charge configuration.
Very nice. So let's take an example. Suppose एक charge है -q and the another charge is +4q. Right? दोनों के बीच की डिस्टेंस है a. पहली चीज ये हमने किया ऐसे क्वेश्चन. Did we do any such question yet? Friends? Friends? Yes, sir. Did we do this question? Such question मतलब find the positions where electric potential is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किए थे हमने नल पॉइंट के नाम से where electric potential is 0. सर नहीं, हमने नहीं करेंगे. Okay. And draw V versus X graph then. So कैसे करेंगे हम इसमें? Like what will be the एक पॉइंट चार्ज हमको बाहर ले लेंगे, फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे V1 plus V2. पॉइंट लेंगे तो कहाँ पर होगा? दैट वाज माय क्वेश्चन एक्चुअली. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना के कर लेते थे. Yes, जहाँ पे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. नाउ इन दिस केस हाउ टू डिसाइड इन व्हिच रीजन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी जीरो? रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. Sir, reason 3. Reason 3, how can you say that? Logic. सर या तो रीजन 1 में ले सकते हैं हम, वाई डिस्टेंस लेके सॉल्व करेंगे. नहीं कैसे? हिडन ट्रायल नहीं, हमें मुझे लॉजिक बताओ. हाउ आर यू फाइंडिंग where the potential can be zero? Aman, Yes, sir. is it possible to have potential zero in reason 2? Can you repeat? Is it possible to have potential zero at any point inside reason 2? Yes, sir. यहाँ पे डायरेक्शन तो देखनी नहीं है, सिर्फ एक चार्ज का नेगेटिव और एक चार्ज का पॉजिटिव. दैट्स इट. सो नेगेटिव का कुछ पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव का पोटेंशियल, दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो दैट टोटल विल बिकम जीरो. So there can be a point in between also. Now there can be a point in reason 1 also. क्यों? क्योंकि again direction doesn't matter. ये चार्ज छोटा है, अगर इसके लिए डिस्टेंस थोड़ी है. For the other charge is greater and the denominator is also bigger. So they both again can cancel out. But in reason 3 it won't be possible. Why? Because here positive charge is greater and distance will be smaller. So positive charge का potential negative charge से हमेशा बड़ा होगा. Reason 3 में potential is always positive only. So इसमें हमें सिर्फ एक स्केलर मैग्नीट्यूड देखना है, कहां पर कौन से रीजन में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल दे कैन कैंसल ईच अदर. राइट? अंडरस्टूड? विनीत? Yes, Yes, sir. sir. इन रीजन 2 हमने अज्यूम कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो एट पॉइंट ए. इसमें कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड देखने की कौन से रीजन में उन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज जीरो. पॉइंट ए पे एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, एक नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल आ गया k इंटू 4q डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स. नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल माइनस kq बाई x. दैट हैज टू बी जीरो. इफ यू सॉल्व इट, X equals to A by 5. x equals to a by 5. Is equal to q by x, q cube 1. 4x is equal to a minus x, 5x equals to a. So एक तो हमें पॉइंट मिल गया कि ये बीच में x equals to a by 5 डिस्टेंस पे from minus q there is a point where potential is zero.
अब हम आते हैं दूसरी तरफ. On the in the reason number 1. In reason number 1, it is possible to be 0, right? In reason number 1, is it is possible? Yes, sir. Y equals to a by 3 distance. Correct. Now we'll calculate in reason 1 also. In reason 1 at point B, suppose potential is 0. Point B पे potential because of the negative charge minus kq by y, because of positive charge k into 4q upon a plus y, which is equal to 0. On solving, y should come out a by 3. So एक बाहर की तरफ माइनस क्यू से लेफ्ट साइड में a by 3 पे, और एक दोनों के बीच में माइनस क्यू से a by 5 डिस्टेंस पे on the other side. These 2 points are where potential is 0. Correct? Right? Yes, sir. Now we need to draw this graph. बेटा ये समझ में आ गया ना कैसे डिसाइड किया कि रीजन 3 में नहीं होगा? बिकॉज अगर कोई भी पॉइंट लेते हो यहाँ पे 4q का पोटेंशियल 4q by x dash will always be greater than kq by a plus x dash. In reason 3, by mathematical logic, we can decide that potential can never be 0 because positive का potential negative से हमेशा बड़ा होगा. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर जो आपने ये बी पॉइंट लिया है ये पॉजिटिव चार्ज से लिया है, ए प्लस वाई डिस्टेंस. नहीं नेगेटिव से लिया ना भाई. नेगेटिव से y डिस्टेंस है. This distance is y. सर आप एक बार बता सकते हैं बी का कैसे डिसाइड करा, बी एज्यूम कैसे करा 0, लेकिन क्योंकि देखो ये थर्ड. चार्ज छोटा है. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? kq by r. यस सर. If charge is smaller, q छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटी होनी चाहिए. Then only ratio will be same. If charge is bigger, then distance should be bigger. So point B पे charge q is smaller, distance is smaller. 4q is bigger, the distance a plus y is also bigger distance. Only then the ratio will be equal. One negative, one positive, they both can become 0. Right? यस सर. और सर थर्ड पे कैसे नहीं सर, थर्ड पे कैसे डिसाइड करा आपने? और फिर रीजन इसलिए क्योंकि जो चार्ज है वो बड़ा है. q न्यूमरेटर इज बिगर, r डिनोमिनेटर इज स्मॉलर. कोई पॉइंट अगर ले भी लेते हैं x डैश, तो बड़े वाले चार्ज के लिए डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, न्यूमरेटर इज बिगर. Yes, This okay. 4q potential will always be greater than minus q potential. Correct? Everyone sir. understood? Yes sir, understood sir. Thank you. Now we have to draw this also on the graph. One charge was minus q, another is 4q. Kavin? Yes, sir. Beta, you are understanding these concepts? Yes, सर sir. एक बार बस स्क्रॉल अप कर दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा. बस एक क्या चीज फिर से बोलो. सर, बस एक बार स्क्रॉल अप कर दो, बस एक चीज. ओके, थैंक यू सर. Yes, so now we have found these 2 points. Here potential is 0, a by 5 distance. Outside में एक point मिल गया जहाँ पे potential 0 है. This is point A, this is point B. Now what we have to find, we have to draw this graph. Potential का formula क्या होता है? V is equal to kq by small r, no direction involved, which means Scalar if quantity. is 0, potential will be infinity. अगर हम किसी चार्ज के पास में तो उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा. किसी चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस में तो पोटेंशियल 0 होगा.
Similar logic we use in the case of electric field also, but वहां पर हमें दोनों का resultant देख के decide करना होता था whether it is going to be positive infinity or negative infinity. यहाँ पर ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लेफ्ट साइड में भी प्लस इन्फिनिटी होगा, राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी होगा. ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट साइड में भी नेगेटिव. इज दैट क्लियर? स्केलर क्वांटिटी अगर चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल पॉजिटिव, अगर चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल नेगेटिव. सो नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी चार्ज के पास, here it becomes 0 and then plus infinity closer to the positive charge. सर ये एक बार फिर से बता दें. बेटा ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला kq by r and it is a scalar quantity, right? Yes. Positive charge electric potential will be positive, negative charge electric potential will be negative. Yes, sir. so जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पास क्लोज टू दी चार्ज, मतलब r की वैल्यू 0 होगी तो v इज इंफिनिटी, r की वैल्यू इंफिनिटी होगी देन v इज 0. ओके सर. चार्ज के पास पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव होगा. चार्ज के पास इंफिनिटी और चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0, it will become 0 at infinite distance. Yes, sir. इधर नेगेटिव चार्ज था, ऑन द अदर साइड नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये पॉइंट बी पे फिर से हो गया 0, सो दैट पोटेंशियल बिकम 0. सो ये 0 तो हो गया, अब आगे कैसे होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होके 0, इनफाइनाइट डिस्टेंस अगेन इट इज बिकमिंग 0. तो ये थोड़ा इंक्रीज होके और फिर then again it will go to infinity like this. Clear? Yes. This will be v versus r graph. कैसे बनाया वो आपको समझना important है. So we can find these 2 points by using 2. So आपको अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है या पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ पे 0 होगा, तो केवल एक पॉइंट नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड 0 होगा, केवल एक ही पॉइंट था और वो ये वाला था, क्योंकि ये v का ग्राफ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv by dx. तो अगर ये पूछे कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, दैट इज दिस पॉइंट जो भी है x equals to x1. X equals to x1 is null point in this Vx graph. Null point means where electric field is 0. Right? Right? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ग्राफ नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से समझाओ मैं. श्रेया, काइली, ख्याति, understood this graph? Yes, sir. This is easier than electric field. Electric field वाले में हमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ती थी और फिर हम उसका रिजल्टेंट देखते थे. It is just a scalar quantity, scalar number. We need to just add them algebraically. पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव. सर मुझे ये डाउट है, डिफरेंस क्या है दोनों ग्राफ्स में जो हमने बनाया है, ऊपर और नीचे वाला? ऊपर ग्राफ नहीं बनाया हमने, ऊपर तो सिर्फ कैलकुलेशन, तो ग्राफ नहीं बना ना, ऊपर सिर्फ कैलकुलेशन की थी, उसका ग्राफ नीचे फिर से क्लियरली बना दिया. ये डॉटेड ऑरेंज कलर लाइन है, दैट इज द वी ग्राफ. ऊपर वो नहीं बनाई थी ना. यस सर, ओके. If both charges are positive, then obviously it cannot be 0. Potential cannot be 0. अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव ही हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be positive because of both of them. It can never be 0. Right? Yes sir. Okay, if one is positive and one is negative, plus q and minus q, and draw its potential versus graph. Draw the v versus x graph for
सर ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है। ड्रॉ v वर्सेस x ग्राफ। इजी है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी बता सकते हो। Denominator has the same। कैसा बना ग्राफ फिर? पॉजिटिव चार्ज के पास प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज के पास प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जीरो। नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस जीरो। हियर इट इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये समझ आ रहा है कैसे बनाया v वर्सेस x? इसमें किसी और रीजन में पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगी तो उनके पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं हो सकते। Learn? Understood this one? Yes, sir. Very nice. So now there are few concepts related to the electric, I mean some tricky concepts, electric field and potential due to induced charges. अब induced charges के लिए ये थोड़ा important topic है. This is again for advanced and mains. Electric field and potential both. हमने electric field भी नहीं किए थे. Electric field and potential due to induced charges. कुणाल, यस सर। बेटा वो लॉगिन हो गया था आपका? यस सर, हो गया था। Okay. So, let's say this is some conductor, metallic conductor maybe, and charges on its surface. Right. Charges on surface. बाहर हमने कोई charge रखा हुआ है plus q, and the distance of plus q from the center of this is small d, and the radius is capital R. Because it is a metal, so there will be charges induced. There will be charges induced. अब ये पॉजिटिव चार्ज इधर कुछ नेगेटिव इंड्यूस करेगा, and on the other side it will have a positive charge, right? यस सर। लेफ्ट साइड में जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, राइट चार्ज में जो इंड्यूस हो रहा है, हमें इस चार्ज की वैल्यू नहीं पता, हमें इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं पता कि कितना और कहां पर होगा, बट हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. सो क्वेश्चन इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, find the electric field due to induced charges at the center. Due to induced charges at center. कैसे करेंगे, क्या यूज करना चाहिए लॉजिक? Any hint? कोई किसी को आइडिया स्ट्राइक कर रहा हो?
लॉजिक क्या है यहाँ पे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता है वैसे इसके बारे में, व्हाट डू वी नो? दिस इज अ मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर है, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया बिकॉज पॉजिटिव हैज अट्रैक्टेड नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव. What do we know about the electric field inside metal? So Sir, the sides only. zero. Zero. Electric field inside is zero. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाय प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेशन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में सपोज E. These induced charges, they will develop its own electric field because of from positive to negative. So though we cannot calculate the charge distribution or electric field due to these induced charges, what we can calculate is by principle of superposition, we can say that the net field at the center is zero. E is electric field, and to make this net electric field zero, the induced charge electric field should be equal and opposite. E in is electric field due to charges induced. समझ आ रहा है? Yes, sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is 0. Yes, sir. So which means the electric, by using the principle of superposition, electric field due to external charge plus electric field due to induced charge, that has to be 0. Electric field due to induced charge will be same as external electric field, और external electric field हमें पता है क्योंकि वो एक पॉइंट चार्ज ही है, so that will be k cube by d square. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इंड्यूस का आ जाएगा माइनस आई कैप. What is the direction? Towards left or towards minus I cap? Right? Right? Yes, sir. Electric field due to induced charge will be exactly equal to the electric field due to external charge, but act in opposite direction. Okay. Sushant? Very nice. अब ये तो पॉइंट O पे था, सपोज किसी और भी पॉइंट पे निकालना होता एट एनी अदर पॉइंट, देन आल्सो वी कैन यूज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज zero at every point, not just at the center, electric field at any point is going to be zero inside the metal. So अगर सपोज ये कंडक्टर है और हम कंडक्टर के अंदर, the same case, it is the same situation, there is a charge q, सेंटर तक की डिस्टेंस है d, बट अभी हम पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, we have to calculate the electric field at point A due to induced charges. सर हमने आई कैप क्यों लिया है यहाँ पे? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए है. ओके राइट साइड में प्लस, या तो टुवर्ड्स लेफ्ट लिख दो, या तो टुवर्ड्स लेफ्ट लिख दो, या फिर उसको माइनस आई कैप. बेटा समझ गए फ्रेंड्स? यस सर. Second part of the same question is, now we have to find the
Calculate electric field at point A due to induced charges. सेम लॉजिक फिर से लगा लेंगे. जितनी एक्सटर्नल चार्ज ने वहां पे फील्ड प्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस. So electric field due to induced charges will be again ये पॉजिटिव है, so there will be some negative on the left side, there will be some positive on the right side. पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, बट ए पर पहले हम एक्सटर्नल वाले की फील्ड बनाएंगे. Exactly equal and opposite has to be induced electric field. Only then the net will be zero. Magnitude wise, electric field due to induced charge will be exactly same as electric field produced by the external charge. और ये कितना आ गया? AQ by R1 square, right? जितना एक्सटर्नल चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दी, और इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज. लॉजिक समझ आ रहा है ना? So this Yes. is, we cannot calculate directly, but we can calculate with the help of, we can calculate with the help of principle of superposition. Right? बेटा समझ आ गया? सेम वे कैन डू फॉर एवरी पॉइंट. जिस भी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज का निकालना हो, जिस भी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज का निकालना हो, वहां पर हम जिस भी पॉइंट पे निकालना वहां पर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल चार्ज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे. तो फील्ड तो चलो फिर भी समझ में आ गया. नाउ थर्ड इज इन दिस सेम सिचुएशन, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए आल्सो. ये थोड़े से ना आप एडवांस वाले कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्चुअल वाले, इनको आप रिवाइज जरूर कर लेना. नहीं समझ में आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A inside this. थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है, ये आपको सोचना पड़ेगा हाउ वी आर यूजिंग दैट. सेम बाहर एक चार्ज रखा हुआ है Q, पॉइंट चार्ज at a distance d from its center. Radius is capital R. चलो रेडियस को भी हटा देते हैं, डायग्राम अच्छे रखते हैं. यस, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, दैट पॉइंट इज O. आस्किंग द पॉइंट A. पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है और A की डिस्टेंस है R. It's not just because of induced charge, it is the net potential बताना है. बाकी इस पॉजिटिव की वजह से सरफेसेस पे one side there is a negative charge induced and on the other side there is positive charge induced.
Yes. Any idea, any hint how to calculate that? Any idea, any hint, any suggestion how to find this? अरे कोई भी सर डायरेक्टली नहीं कर सकते मैं पूछ रहा था। एक ट्राई करो, मतलब सोचो कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द पॉसिबल वेज। दे हैव गिव द हिंट। सी लॉजिक क्या लगाएंगे हम? लॉजिक इज दैट if we okay find potential at any point either inside or on the surface, the same potential will be everywhere. Right? बेटा बोलो हाँ या ना। अगर हमने अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, the same will be potential at every point either inside or on the surface. That was the property of inside metal. metal के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, so constant same will be the potential everywhere. Done? Now, so हम क्या कर रहे हैं अभी? पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं एट पॉइंट ए, बट ए को भूल जाते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं ओ पे। ओ पे कैलकुलेट करना इजी है। कैसे इजी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना हुआ? Electric potential at point A due to induced charges is how much? कैसे सोचना है इसको? लेफ्ट साइड में जितना पॉजिटिव है राइट में उतना ही, लेफ्ट में जितना नेगेटिव राइट में उतना ही पॉजिटिव है। so अगर इस वाले से नेगेटिव आएगा इससे उतना ही पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव सेम पॉजिटिव, नेगेटिव सेम पॉजिटिव, बिकॉज इट इज जस्ट इन द पेयर्स और दोनों की डिस्टेंस सेम ही है। ये समझ आ रहा है? एट द सेंटर नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही राइट साइड से पॉजिटिव चार्ज का भी होगा, एंड दैट मींस negative and positive induced charge potential will always cancel out each other. Electric potential at O due to induced charges is always zero. Got it? O पर induced charges की वजह से potential हमेशा zero होगा। ये लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. Why it will be zero? Because left side के जितने distance का negative charge है, exactly same amount and same distance on the right side, this is the positive charge. So negative और positive दोनों cancel out हो जाएंगे, net potential हो गया zero। बचा कौन सा? External charge, potential scalar quantity। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जितने भी चार्जेस हैं सबके पोटेंशियल का अलजेब्रिक समेशन करना होता है। अब ये सारे टॉपिक आप बुक्स में ढूंढोगे तो बहुत सारे बुक्स में है भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल में ना टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस हैं, उनको करने के लिए आपको खुद का दिमाग लगाना चाहिए, बट इट्स बेटर कि हम उसको एक बार क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। के क्यू बाई डी इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चार्ज, जीरो बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का जीरो क्यों है उसका लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया है, बिकॉज राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे सेम नेगेटिव। अगर ओ हमें अंदर के किसी पॉइंट का सेंटर का पोटेंशियल मिल गया, same potential is everywhere. Potential at every point is same, inside as well as surface. सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर के क्यू बाई डी प्लस जीरो क्यों करा आपने? के क्यू बाई डी तो एक्सटर्नल चार्ज का हो गया इसका, तो सर और जीरो हो गया इंड्यूस चार्जेस का मिला के, एक तरफ का नेगेटिव दूसरी तरफ का पॉजिटिव।
इंड्यूस चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होगा. रीजन बीइंग वन साइड इट इज पॉजिटिव चार्ज, सेम डिस्टेंस पे अदर साइड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. राइट? Yes, sir. Understood. O पे निकाल लिया हमने, उतना ही पोटेंशियल A पर भी होगा, इतना ही पोटेंशियल सरफेस पर भी होगा. Potential for every point inside is constant and same as potential on the surface. ये सब ना थोड़ा अच्छे एडवांस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में same as potential on its surface. राइट. बेटा इस टॉपिक को दोबारा रिवाइज जरूर कर लेना. ये टॉपिक्स जनरली बुक्स में ऐसे है नहीं, एक्सप्लेन नहीं है या है नहीं, बहुत ही कम बुक्स में है और समझ में थोड़ा कम आते हैं. नाउ हाँ, इसमें जो जो थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है इसमें कि सपोज हमने ये लिया कोई मेटल में देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, बाहर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. This positive charge has induced negative on one side, positive on the other side. अब ऐसे तो देखने पे क्या लगता है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पोटेंशियल कम होगा. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P and potential of point Q. Will they be at same potential? P and Q will be at same potential. होने तो नहीं चाहिए बट होंगे. क्यों? क्योंकि ये मेटल के सरफेस पे. कितना होगा दोनों का पोटेंशियल? सेम एज पोटेंशियल ऑन सरफेस. एट पॉइंट P जो कि नेगेटिवली चार्ज सरफेस पे था, KQ/D होगा ना. जी. पॉइंट P का पोटेंशियल, पॉइंट O का पोटेंशियल, पॉइंट Q का पोटेंशियल, एवरीवेयर दिस पोटेंशियल इज सेम एज KQ/D. थोड़ा सा अजीब लगता है समझने में, डाइजेस्ट करने में, लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि पॉइंट P थोड़ा सा पास में है पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव का पोटेंशियल कम. वो दोनों मिलके उतना ही पोटेंशियल हो जाएंगे जितना कि सेंटर पे है. राइट? सर एक बार नीचे वाला प्लीज दोबारा समझा दो. कौन बोल रहा है? प्रिंस? सर आशुतोष. सर आशुतोष. आशुतोष, तुम्हारी आवाज बड़े दिनों बाद सुनी बेटे. क्लास नहीं कर रहे थे क्या? नहीं सर होता हूँ. हाँ, पढ़ाई कर लो बेटे. है सरप्राइज तुम्हारी डीली चल रही है इधर कुछ. नीचे वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं. किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. पोटेंशियल इज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा. इनसाइड मेटल एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी सेम एज पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस. सरफेस के एक साइड पॉइंट Q, एक साइड पॉइंट P और बीच में सेंटर पे पॉइंट है O. अंदर का पॉइंट O ले लो या A ले लो, हर किसी का पॉइंट सेम पोटेंशियल सेम होगा. और हमने अंदर उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया बाय सिमेट्री, जो एग्जैक्टली सेंटर पे था, दैट इज पॉइंट O. O पे इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल 0 होगा. ये समझ आ रहा है आशुतोष? ओनली एट पॉइंट यस O, सर. क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्जेस है उतने पे ही पॉजिटिव है राइट में. उतना ही पॉजिटिव है. दोनों का पोटेंशियल मिलके 0 हो जाएगा.
अब हमने अंदर के किसी एक पॉइंट का निकाल लिया, बाय सिमेट्री वी गॉट द पोटेंशियल एट पॉइंट O, और क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल इनसाइड हर जगह पे कांस्टेंट ही होता है, तो जितना O पे है उतना ही पॉइंट A पर भी होगा, उतना ही सरफेस पर भी होगा, और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। KQ by D because of external charge due to the induced charges it will be 0. Due to the induced charges it will always be 0. ओके सर। Right. अब अगर इसी में मैं पूछूं what is the potential due to induced charge at point A? Electric potential due to induced charge at point A. Find the electric potential. इसी का नेक्स्ट पार्ट, मतलब ये ना हम एक ही सिचुएशन को एनालाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं हम कर क्या रहे हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, नॉट इन द स्कूल लेवल, नॉट इन द बेस लेवल, आल्सो बहुत कम आता है, एडवांस में आता है फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे। सो लाइक हमने करना था यहाँ पे एक मेटल है विच इज अ न्यूट्रल मेटलिक स्फीयर, उससे d डिस्टेंस पे, सेंटर से d डिस्टेंस पे वी पुट अ पॉइंट चार्ज। ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कुछ सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, एक साइड नेगेटिव दूसरी साइड पॉजिटिव। We have to find the electric field and potential due to this charges induced on the surface of the metal. अब इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, रीजन बीइंग because these charge distribution is not known, first thing. Second thing is that उन चार्जेस का पोटेंशियल भी हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब पॉइंट O पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने लॉजिक क्या यूज किया, पॉइंट O इज इनसाइड मेटल और इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट। सो O पे भी 0 होनी चाहिए। O पे 0 कैसे हुई, जितनी एक्सटर्नल चार्ज की फील्ड है एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस। So by the use of principle of superposition we got that electric field should be equal and opposite, so आ गई minus KQ by D square. That was point O. O was the center. अगर सेंटर के अलावा हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, at every point this will be the same case. जितना एक्सटर्नल चार्ज ने फील्ड प्रोड्यूस किया, exactly same amount of electric field but in opposite direction will be due to the induced charges. Point A पे KQ by R1 square it will be same but opposite direction due to induced charges. अब जब पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा ट्रिकी है। पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना था पॉइंट ए पे, अभी ए तक पहुंचे नहीं हम, ए की जगह पे ओ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि उनके लिए वो सिमेट्रिक नहीं है, नेगेटिव चार्ज कुछ पास में है कुछ दूर है, तो हम ए को भूल जाते हैं, हम ओ पे पहुंच जाते हैं। पॉइंट ओ के लिए लेफ्ट साइड का नेगेटिव, राइट साइड का पॉजिटिव, दे बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डिस्टेंस, तो दोनों का जो पोटेंशियल नेट होगा दैट विल बी 0। नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस 0, बचा पोटेंशियल केवल एक्सटर्नल चार्ज का। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस KQ by D, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑलवेज 0 एट सेंटर। सेंटर का पोटेंशियल मिल गया, यानी अंदर के क्या में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। At any point potential is constant, so जो point O पे है same will be at point A, same will be potential on the surface. So जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया, अगर हम कंडक्टर के एक साइड जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहां के पॉइंट लें और दूसरी साइड जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉइंट लें, then also both the points are at same potential. दो देखने में लगता है एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, it is going to be less potential on the left side, but इन दोनों का potential भी सेंटर के इक्वल होगा। अंदर कोई भी पॉइंट लेंगे the potential is going to be same only, right? अभी समझ आ गया आशुतोष? यस सर। Now my next question is कि हमने जो ये पॉइंट A लिया था वहां पे इंड्यूस्ड चार्ज का पोटेंशियल कितना, नंबर 5 होगा शायद, नंबर 4। Fourth part of the same situation is calculate the induced charge potential at point A.
Fourth, calculate electric potential due to induced charges. At point A. Here charge is Q. This was point A. Point A की distance है R1. Point A पे हमें बताना है what are the potential produced by the induced charges. इधर negative charge, दूसरी तरफ positive charge. The distance from center to that point is D. Yes, can anyone try? समझ आ रहा है क्या? सर 0 0 तो नहीं होगा यार. इधर माइनस क्यू इंड्यूस्ड, इधर प्लस क्यू इंड्यूस्ड. सी पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो O के इक्वल होगा. ये क्लियर है? यस सर पोटेंशियल को यूज करके हम निकाल सकते हैं सर, जो हमने दोनों चार्जेस की वजह से निकाला है उसको यूज करके हम ए पे निकाल सकते हैं इंड्यूस चार्जेस की वजह से. ओके, बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू R1 डिस्टेंस पे KQ बाय R1 आ गया एक्सटर्नल का, प्लस कुछ सम इंड्यूस का जो हमने एज्यूम कर लिया, और O का पोटेंशियल हमें पता है दैट इज गोइंग टू बी KQ बाय D. यूज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. A पे एक्सटर्नल चार्ज का पोटेंशियल प्लस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल. So potential at point A due to induced charge will become KQ by D minus KQ by R1. Right? यही कह रहे थे आप? यस सर. दिव्यांशी? सर ऐश्वर्या. ऐश्वर्या. ओ ऐश्वर्या. Yes, sorry. Electric potential at point A due to induced charge. By using the electric potential.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया अगेन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ए का पोटेंशियल ओ के इक्वल होगा, ओ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए पे नेट पोटेंशियल एक एक्सटर्नल चार्ज का और एक इंड्यूस चार्ज का। बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। राइट, Aman, Yes, sir. got it? Yes, sir. Understood. सिमिलरली हम इसके किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल चार्ज की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से दोनों का समेशन करके और सेंटर को यूज करके वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता है एज वी डिड फॉर रिंग आल्सो। किसी भी रिंग के सरफेस पे कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, द नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज ठीक है। Yes, sir. राइट, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट कैपेसिटर, capacitance and capacitor will start next class। राइट, चलो ओके ठीक सर। है, ओके इसको आप कर थैंक यू लेना। सर। थैंक यू थैंक सर। यू। ओके बेटा, थैंक यू सर। हम्म, थैंक यू सर।